यस बेटा, पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश टू एक्सपेंड इन इंडिया। बेटा, ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड many different policies. I'm not writing too many policies. I will just make you clear about those policies which you cannot leave for 4 marks question even. Clear? In the policy section, the first main policy of the British was the policy of subsidiary alliance system. What was the policy, beta? Subsidiary. What was the first main policy? That was subsidiary alliance system. Subsidiary alliance system. Beta, this policy was introduced by Lord Wellesley in 1798. Do you know who was Lord Wellesley? जिसके बारे में कल एक और फैक्ट भी पढ़ा था। सर वो एंग्लो-मैसूर वॉर्स में जो कमांडर था अगेंस्ट टीपू सुल्तान। Very good, very good. He was the commander of the British in Anglo-Mysore Wars who killed Tipu Sultan. ये लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में 2 फैक्ट्स बड़े फेमस हैं कि he introduced subsidiary alliance system and he killed टीपू सुल्तान। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स इधर क्लियर बेटा? अच्छा, इसमें सबसे मेन चीज क्या है कि टीपू सुल्तान, फॉर एग्जांपल, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम था क्या? व्हाट वाज दैट सिस्टम? लेट मी जस्ट मेक यू क्लियर बेटा। फॉर एग्जांपल, Umar Fahad is the owner of this area. Umar Fahad is the owner of this area, means कि he is the ruler of this area या prince of this area. Now, if Umar Fahad is ruling this area, तो मैं इसके बाद पास as a British official, I am visiting him as a British official. इसके पास कौन आ रहा है? एसन जो है वो एज ए ब्रिटिश आर्मी मैन या ब्रिटिश कमांडर, I am visiting Umar Fahad. I am visiting Umar Fahad as a British army man, British officer. जी बेटा, I am British officer and I am British officer and I'm visiting Umar Fahad and I'm saying him to take the army services. मैं उमर फहद के पास गया और मैंने उमर फहद को क्या कहा? मैं आपको क्या दे रहा हूं? आई एम प्रोवाइडिंग यू आर्मी सर्विसेज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, उमर फहद, मैंने आपको क्या ऑफर किया था? व्हाट इज माय ऑफर टू यू? सर, आर्मी सर्विसेज। आर्मी सर्विसेज। उमर फहद की जो प्रिंसली स्टेट्स है, प्रिंस ऑफ दिस एरिया, उमर फहद को मैंने आर्मी सर्विसेज दी और मेरा और उमर फहद का आपस में अलायंस बन गया। अलायंस ओवर provision of military services. Is it clear? अब बेटा, उमर जो है, उमर को इसके बदले में, इस अलायंस के बदले में, if Umar is taking my army services, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, if Umar is taking my army services, in return what Umar has to
Umar is supposed to pay something. Umar has to pay tax to me, which is called subsidy, which is called subsidiary amount to my army. मेरी आर्मी को क्या पे करना पड़ेगा? सब्सिडरी अमाउंट. अगर उमर कहते हैं कि मैं आपकी आर्मी को, एहसन साहब मैं आपकी आर्मी को पे नहीं करूंगा, तो अलायंस किसने तोड़ा मेरे साथ? मेरे साथ अलायंस किसने तोड़ा? उमर ने. बेटा बच जाओ, इसने अलायंस तोड़ दिया मेरे साथ. अब मैंने सिंपली इसको एक्सक्यूज बना के उमर पे अटैक किया एंड उमर की लैंड को ले लिया. तो ये सब्सिडरी अलायंस वाज वेरी क्लेवर पॉलिसी. इज इट क्लियर एवरीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज देयर एनी इशू? इज देयर एनी इशू? नो सर. डन. अच्छा, नाउ सब्सिडरी अलायंस के बारे में हम थोड़ी डिटेल लिख लेते हैं. वी कैन जस्ट राइट द डिटेल ऑफ सब्सिडरी अलायंस. आई एम जस्ट राइटिंग द डिटेल ऑफ सब्सिडरी अलायंस. So subsidiary alliance was an alliance for the military services. Acha, British gave military services to few rulers by making alliance with them. By making alliance with them. Is it clear? ब्रिटिश ने क्या किया बेटा? अलायंस बनाया. इसके बदले में फॉर द प्रोविजन ऑफ मिलिट्री सर्विसेज, इन विच rulers had to pay for their services. Rulers had to pay for their services, या for services to them. Clear? However, when rulers did not pay to the British forces, they broke alliances and British captured their state, captured their states. One of the biggest area in India was captured by the British by using subsidiary alliances. Hyderabad state. Let me just give you the fact about Hyderabad state. बेटा हैदराबाद दक्कन जो है ये साउथ इंडिया के अंदर है. वेयर इज हैदराबाद दक्कन लोकेटेड? साउथ. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हैदराबाद is located is sharing border with which state? जी, नवाब ऑफ हैदराबाद किसके साथ शेयर कर रहा है? मराठा एम्पायर के साथ. मराठास के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है. किसके साथ शेयर कर रहा है? मराठास के साथ. निजाम ऑफ हैदराबाद इज शेयरिंग बॉर्डर. ब्रिटिश सर्जेंट जाता है निजाम ऑफ हैदराबाद के पास, उसे कहता है कि मैं आपको अपनी मिलिट्री सर्विसेज देता हूं क्योंकि आपको मराठास जो है वो मार देंगे. और निजाम ऑफ हैदराबाद हु वाज ऑलरेडी फ्राइटेंड ड्यू टू मराठास, वो कहता है ठीक है मेरे साथ अलायंस बना लो. बस इस तरह से अलायंस बनाया था निजाम ऑफ हैदराबाद ने. लेटर ऑन निजाम ऑफ हैदराबाद के पास स्टेट नहीं रही. दैट वाज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश. इज इट क्लियर एवरीवन? Is it clear?
ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. यस सर। हाँ सर हाँ, यस बेटा, यस सर ये यस जो यस। ये जो बाद में निजाम ऑफ हैदराबाद है, ये नवाब ऑफ हैदराबाद की फैमिली मतलब उन्हीं के डिसेंडेंट्स थे, ये जो जी 1947 बेटा, के टाइम पीरियड। वो नवाब ऑफ बहावलपुर था, जो इधर की बात आप कर रहे हैं। यो नो सर वो वाला जो नहीं, वो जो वो भी था निजाम बेटा, उसके टाइम हैदराबाद जैसे 1947। मराठास के लीडर को कहते थे पेशवा, तो हैदराबाद के रूलर को हमेशा क्या कहते थे? निजाम, निजाम। निजाम ऑफ हैदराबाद। तो 1948 में बेटा जो हैदराबाद का रूलर था, ही वाज अंडर द ब्रिटिश पैट्रोनेज, के मतलब उसे ब्रिटिश पेंशन पे रखा हुआ था, उसकी एक्चुअली पावर नहीं थी, मुगल किंग की तरह वो भी पपेट रूलर था सिर्फ। सर वो जो मीर उस्मान अली खान था। जी बेटा, ही वाज जस्ट पपेट रूलर। सर तो ये जब हैदराबाद एक बार ब्रिटिश ने ले लिया तो फिर वापस कैसे इनको दिया वापस था? नहीं मिला, हैदराबाद लिया लेकिन उन्होंने उसका फाइनेंशियल कंट्रोल लिया था। ओके क्लियर? सर। और उसका बाकी जो फाइनेंशियल कंट्रोल के अलावा जो उस एरिया के अंदर जो एक पपेट रूलर था, दैट पपेट रूलर वाज द निजाम ऑफ हैदराबाद, वो इंस्टिल रहता था। ठीक है, इज सही इट है क्लियर सर। बेटा? सर ये जो बाद में जी जितने भी थे ये नवाब ऑफ वो हो गए, मीर सादिक जो था बालपुर का, ये सारे पपेट रूलर्स है ना ये पपेट 90। रूलर, यस दे वर पपेट रूलर्स, यस। जी। Okay, beta. After subsidiary alliance system, there was another policy that was called claim to claim to paramountcy. Claim to एक तीन है ये टोटल, मैंने तीन लिखवाने हैं। क्लेम टू पैरा, हाँ हाँ नीचे लिख दो। क्लेम टू पैरामाउंटसी। बेटा पैरामाउंट मीन्स paramount. What is the meaning of the word paramount? Supreme सर or सुप्रीमेसी। powerful. Yes, supreme or powerful. In 1820s, British became very powerful in India, and they were basically क्या उसे कहते हैं कि they were बदमाश in India. They were so powerful. They had more authority. British announced in 1820s. British announced in 1820s that if any ruler would work against the interests of the British, if any ruler would work against the interests of the British, their lands would be annexed like Sindh was captured by the British under this claim. Is it clear, everyone? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ब्रिटिश ने क्या कहा? माइट इज राइट। इस पॉलिसी का आसान लफ्जों में मैं ट्रांसलेशन करूं, माइट इज राइट कि मतलब अगर मेरे पास पावर है तो सर मतलब खाली मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है, बस बाकी सब उसके सही। लिए हाँ, अगर मेरे पास जो भी पावर है तो पाकिस्तान में तो हो रहे मैं सही हूं, बाकी सारे गलत है। ठीक है जी, सर फौज डन हो यही गया? तो कह रही है। Yes. ओ ना, ये ऑनलाइन क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, सॉरी ऐसे नहीं वर्ड बोलते। अच्छा मूसा, यस सर। तुम्हें तो नहीं पकड़ेंगे, वो कहेंगे ये तुम्हारे सामने जो बोल रहा था इसको पकड़ते हैं।
नो सर, मुझे ही पकड़ेंगे, आपको कुछ नहीं कहते। अच्छा, नहीं नहीं, ये सारों को पकड़ते हैं। सो वो ये भी नहीं देखते कि बच्चे ने कुछ कहा है, काला डाला आ जाता है, काले सर डाले वो से बात। किसी को ले जाते हैं सर, वो एक लड़की थी मिठाई बांट रही थी मोहल्ले में, उसी भी ले गए थे। हाँ, बस इसी तरह 4 ही है। साल की। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद क्लेम टू पैरामाउंटसी के बाद देयर इज अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड, ब्रिटिश ने समटाइम्स ड्यूअल कंट्रोल्स भी स्टैब्लिश किए। ड्यूअल, ड्यूअल गवर्नमेंट या ड्यूअल कंट्रोल, ड्यूअल गवर्नमेंट। फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, dual government was also started by the British in different parts, like as British captured few areas and divided powers with EIC as EIC became as EIC became EIC became financial and trading entity, and British government had checked on them. Later, they took control of finance and administration. अब बेटा पहले उन्होंने, ब्रिटिश जब आए ना, तो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन एडमिनिस्ट्रेशन ओनली, they were interested in money. For the sake of money they came in India, that was their main purpose. Lekin later on they established their double control in India, like they took over the financial control as well as the administrative control, because they came to know if they would have administration in India, then they could occupy more financial resources. पहले उन्हें लगता था कि फाइनेंशियल कंट्रोल लेने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन लेटर हमने लगा कि नहीं, फाइनेंशियल कंट्रोल हमारा, हम पैसा ज्यादा तब कमा सकते हैं जब हम गवर्नमेंट में भी आ जाएंगे। इज इट क्लियर? इसी तरह हमारे पॉलिटिशियन गवर्नमेंट में क्यों आना चाहते हैं ज्यादा? क्योंकि उन्हें पैसा कमाने का अच्छा मौका मिल जाता है। ऐसे ही है ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सर यस बेटा। सर ये जो ब्रिटिश एम्पायर की जो कॉलोनी थी, उनमें अमेरिका भी, यूएसए भी पहले शामिल होता था ना जी कॉलोनीज बेटा, में। बिल्कुल बिल्कुल शामिल था, बिल्कुल सर शामिल। तो इन्होंने उसे उस मतलब ये अमेरिका को क्यों ऐसे नहीं लूटा जैसे इंडिया और अफ्रीका को लूटा है? बेटा मैं बताता हूँ, अमेरिका के अंदर, बेटा अमेरिका का सिस्टम बड़ा डिफरेंट था। इन अमेरिका देयर वर नेटिव अमेरिकन्स, बट रेड इंडियंस जो ब्रिटिश थे। जो है, ब्रिटिश जो है, अमेरिका के अंदर ये हुआ था कि अमेरिकन जो है, अमेरिका के अंदर जो ब्रिटिश नेशनल थे, दे सेटल्ड देमसेल्व्स इन अमेरिका। उन्होंने अपने होम कंट्री से डिस्कनेक्टेड हो गए थे वो। इज इट क्लियर? सर सारे इमिग्रेंट्स ही हैं जो हाँ, नेटिव। वो अब अमेरिका के अंदर हुआ क्या था कि बेसिकली जो अमेरिका के अंदर जब जो ब्रिटिश नेशनल गए थे, उन्होंने वहां पे जाके अपनी क्वीन के अगेंस्ट रिबेल कर दिया था। सही है सर। समझ आ गई? उन्होंने इंग्लैंड अमेरिका के अंदर गए और उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो भी क्वीन को सपोर्ट करते हैं हम उसे किल कर देंगे, मार मुड़ सर देंगे। तो ये जो वॉशिंगटन था वो ब्रिटिश था असल में। हाँ, उस वक्त एक इंसिडेंट हुआ था अमेरिका के अंदर, दैट वाज कॉल्ड बोस्टन टी पार्टी। मतलब बोस्टन टी पार्टी के अंदर, बोस्टन टी पार्टी क्या हुई थी कि उसमें जब ब्रिटिश क्वीन ने टी के ऊपर टैक्स लगाया, तो टी जो है चाय,
टी जो है उसका जो टी टैक्स था एक, वो इतना ज्यादा लगाया कि वहां पे बोस्टन के ऊपर जो वहां पे जो टी का भरा हुआ पूरे के पूरे शिप्स थे वो समंदर में गिरा दिया। सही और है। उसके बाद वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अमेरिका की स्टार्ट हुई। और बेसिकली क्यों अमेरिकन इंग्लिश सेपरेट है? अमेरिकन इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश। सर वो मतलब जो उन्होंने अपनी ब्रिटिश के साथ आइडेंटिटी को ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि यस हम ब्रिटिश इंग्लिश भी नहीं बोलेंगे, अलग उन्होंने है। अपनी इंग्लिश बना दी। उन्होंने कहा हम फुटबॉल नहीं कहेंगे, हम सॉकर कहेंगे। उन्होंने कहा कि हम और गेम्स खेलेंगे, ये वाली सारी गेम्स भी खत्म कर देंगे। तो इतना डिस्कनेक्ट कर लिया अपने आप को। क्लियर? यस सर। जी। अच्छा आगे चलते हैं, इतना मुझे साइड पे लेके ना मेरा पूरा टारगेट अचीव नहीं हो सका। अच्छा, लॉज ऑफ द ब्रिटिश, laws of the British to expand their rule. Laws of the British to expand their rule in India. Beta, British made so many laws. The two major laws, तीन में कराऊंगा आपको, the three laws are sufficient. पहला लॉ है, the first law was regulating act of 1773 एंड फिट्स इंडिया एक्ट। अब रेगुलेटिंग एक्ट जो है, इसको रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ब्रिटिश, हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट introduced this law in England to reduce the powers of British East India Company. बेटा किसकी पावर्स को कम करने के लिए ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई ना, तो बेटा बंगाल के अंदर से इतना पैसा कमाया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी रिच हो गई है, वी शुड गो देयर एज वेल। ब्रिटिश EIC। अच्छा, अब बेटा टू रिड्यूस द पावर्स ऑफ ब्रिटिश EIC, एज ब्रिटिश EIC was very corrupt between 1765 to 1773। इसलिए ब्रिटिश ने अपना बंदा अपॉइंट कर दिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड देयर ओन पर्सन, his name was वैरन हेस्टिंग्स। रॉबर्ट क्लाइव को इंडिया से भगा दिया और ब्रिटिश ने अपना बंदा भेज दिया वहां पे। His name was, पहले रॉबर्ट क्लाइव वाज नॉट ब्रिटिश गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नहीं था वो। रॉबर्ट क्लाइव तो पहले से अटैच था, लेकिन वैरन हेस्टिंग का EIC के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था इंग्लैंड से इसको कि वो EIC को अब कंट्रोल करेगा। ये लॉर्ड वेलेस्ली से पहले था। क्लियर? वैरन हेस्टिंग्स जो है वो पहला बंदा था जो ब्रिटिश ने, ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, हेंस वैरन हेस्टिंग्स was appointed as governor by the British government। बेटा किसने गवर्नर बनाया था वैरन हेस्टिंग्स को? लेकिन क्लाइव को किसने गवर्नर बनाया था?
क्लाइव को EIC ने गवर्नर बनाया। इज इट क्लियर? वैरन हेस्टिंग को किसने बनाया बेटा? अब ये लड़ाई किस किस की हो रही है? ये अब रेगुलेटिंग एक्ट में किस किस की लड़ाई हो रही थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट, सर ये रॉयल फैमिली जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट वर्सेस ब्रिटिश EIC था। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट वर्सेस ब्रिटिश EIC आ गया था। इसमें क्या आ गया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट वर्सेस ब्रिटिश EIC। डन। नाउ there were few shortcomings या there were few problems with the regulating act। अभी भी EIC सही तरीके से काबू नहीं आई थी, तो ब्रिटिश ने एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस कराया 1784 में, that was called इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इंडिया एक्ट ऑफ 1784, which act was introduced by the British? The second act, beta, it was explained and extended version of regulating act, also known as Pitt's India Act। Pitt's India Act। What was the name of this act? Other name of this act? Pitt's India Act। Is it clear, beta? Is it clear to all of you? Yes, online students, is it clear? Yes, sir. So Pitt's India Act was the first act जो कि इसमें, अब इसमें क्या हुआ कि it was extended version of regulating act in which British government made EIC only a trading company। बाकी सारा कंट्रोल ब्रिटिश EIC से उन्होंने ले लिया। इवन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज को कहा कि यू हैव टू शो योर एसेट्स एज वेल। जब इंग्लैंड से कोई भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय इंडिया आके काम करता था तो उसे इंग्लैंड में लिखवा के आना पड़ता था कि मेरे पास इतने एसेट्स हैं, इतने पैसे मेरे पास अभी हैं। जब वो इंग्लैंड से आता था तब भी उसे शो कराना पड़ता था। जब वो इंग्लैंड से जॉब करके वापस जाता था तो देन अगेन दे हैव टू शो देयर एसेट्स, ताकि उनको पता चले कि वो EIC वाले कोई चोरी तो नहीं करते। अब तो ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई ना, अब गवर्नमेंट के पास चला। अब मैं बता रहा हूं अभी, अब देखें कि मोर ओवर EIC employees had to show their assets। EIC employees had to show their assets in India, had to show their assets in India for job। अपनी जॉब के लिए उनको एसेट्स शो करने थे। अब इन दोनों एक्ट से इन दोनों एक्ट्स का इंडिया के साथ क्या ताल्लुक है? इंडिया में एक्सपेंशन से क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दीज टू एक्ट्स विद इंडिया? जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैन एनीवन टेल मी द एनालिसिस ऑफ दीज टू एक्ट्स कि इन दोनों एक्ट्स का इंडिया से क्या ताल्लुक है? ये तो EIC और ब्रिटिश गवर्नमेंट आपस में लड़ रही हैं। What's the relation with India? Sir, British government would gain more control over India. Yes. सर Yes. सर इसका ये है कि जो मतलब सर Yes, बेटा।
सर इसका ये है कि जो मतलब अभी इंडिया में जितनी एक्सपेंशन होगी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी, ब्रिटिश ऐसी नहीं कर सकती। यस, यस बेटा। नाउ वेरी गुड। नाउ ब्रिटिश, बहुत सारे बच्चों ने सही बताया कि ड्यू टू दीज लॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज डायरेक्टली British government was directly involved in Indian affairs, so there was more interference of the British in India. So ब्रिटिश का कंट्रोल जो है वो बहुत ज्यादा डायरेक्ट था। इज इट क्लियर? इसके बाद ब्रिटिश ने एक और लॉ इंट्रोड्यूस कराए। These are called Charter Acts. Which laws were introduced by the British? Charter Acts. मैंने बताया था कितने कितने सालों के बाद आए थे चार्टर एक्ट? After every 20 years. 1793, 20 साल कब बनते हैं? 1813, 1833, 1853। इन सारे चार्टर एक्ट्स में क्या था? British introduced police system. British introduced police system, revenue system, army system, जुडिशियल सिस्टम, ये जो जजें या अदालतें थी। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम, एंड सिविल सर्विसेज एक्सेट्रा। अब ब्रिटिश ने इतने डिपार्टमेंट्स इंडिया में बना दिए, उन सारे डिपार्टमेंट्स में ब्रिटिश ने अपने बंदों को ला के बिठा दिए। ब्रिटिश इंटरफेरेंस बढ़ी, बताएं बेटा। ड्यू टू दीज लॉज इंटरफेरेंस इंक्रीज और नॉट? यस सर। Hence these laws enhanced British interference. Hence these laws enhanced British interference, so they annexed easily by these laws. अब एक लॉ रह गया लास्ट में हमारा, और लास्ट लॉ है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। वैसे तो ये वो आप लोगों को आता होगा, लेकिन मैं फिर भी लिखवा दूं क्योंकि दैट इज ऑब्लिगेटरी टू डिस्कस द होल सिलेबस, तो इसलिए मैं वो भी लिखवा देता हूँ। यस, वो भी डॉक्ट्रिन किसको कहते हैं बेटा? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज अनदर पॉलिसी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, नो, डॉक्ट्रिन कहते हैं लॉ को। डॉक्ट्रिन किसको कहते हैं? डॉक्ट्रिन का लफ्ज, डॉक्ट्रिन का मतलब ही लॉ है बेटा। इज इट क्लियर? ये मैं अलहदा से क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि ये 1852 में आया था और ये 1850 वाली टाइमलाइन में नहीं लिख सकते आप।
जी, यू कैन नॉट राइट इन टाइमलाइन ऑफ 1850। चेक करता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? ये यस, ये इंट्रोड्यूस किसने की थी? लॉर्ड डेलहाउजी, लॉर्ड डेलहाउजी। This policy was introduced by Lord Dalhousie. The online students, is it clear? What was doctrine of lapse? Doctrine of lapse में हुआ क्या था कि lapse किसको कहते हैं? Lapse किसको कहते हैं? Lapse नीड फॉर स्पीड खेली है कभी? वो लैप होता है, वो लैप्स भी हो सकते हैं। वैसे लैप्स कहते हैं किसी चीज के जाया होने या खत्म होने को कहते हैं, किसी चीज के खत्म होने को या जाया होने को हम कहते हैं लैप्स। इज इट क्लियर? अब हम कहते हैं कि ब्रिटिश ने क्या पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये था कि ब्रिटिश would annex such lands if a ruler dies without natural ईयर। अगर नेचुरल ईयर का मतलब क्या है कि अगर कोई बच्चा उसका ओरिजिनल बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है, नेचुरल मेल ईयर, यहाँ पे एक वर्ड दरमियान में लिखना भूल गया हूं, यहाँ पे दरमियान में आप लिखे मेल ईयर नहीं है। इज इट क्लियर? इफ देयर इज नो नेचुरल मेल ईयर देन such lands would not be ruled by adopted son or daughter। डॉटर तो अगर नेचुरल है भी तब भी नहीं कर सकती। इवन रानी ऑफ झांसी वाज नेचुरल डॉटर जो थी, वो उसकी सगी बेटी थी, उसकी उसने लैंड ले ली। तो इसलिए सच द लैंड विच वाज कैप्चर्ड बाय झांसी स्टेट, झांसी वाज कैप्चर्ड बाय दिस लॉ। इवन नाना साहेब की स्टेट कानपुर कैसे ली थी ब्रिटिश ने? नाना साहेब हिमसेल्फ वाज अडॉप्टेड सन, वो स्टेप सन था बाजीराव टू का। बाजीराव भी दो आए हैं। बाजीराव टू का अडॉप्टेड सन था, बाजीराव टू का अडॉप्टेड सन का नाम था नाना साहेब। नाना साहेब की लैंड ब्रिटिश ने ले ली थी, कानपुर स्टेट। हाँ तो और क्या, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूं क्या? ब्रिटिश को कैसे पता चला? बेटा पूरे इलाके में खबर फैल जाती है। ब्रिटिश की हमारे से स्ट्रॉन्ग सिस्टम था, स्पाइनिक सिस्टम। हाँ, उनकी मुखबर ज्यादा बड़े होते थे। जी बेटा, यहां तक हमारी सारी पॉलिसीज खत्म हो गई और अब जो है ये आप लोगों का पॉलिसीज, वॉर्स और लॉस का सेक्शन फिनिश हो गया। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? Any question? सर सर वो पॉलिसीज तो रहती है ना जो एजुकेशन पॉलिसीज थी, वो आगे हैं, वो बेटा और डिफरेंट चीज है, वो टॉपिक ही डिफरेंट है। दैट टॉपिक इज डिफरेंट। सही है सर। जी बेटा, डन हो? यस बेटा। जो कल का टेस्ट है उसमें एक आ रहा होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया क्या है और रीजंस ऑफ अराइवल ऑफ द ब्रिटिश EIC। यस बेटा, इसमें रीजंस ऑफ अराइवल और ब्रिटिश जो है वो 1750 से पहले किस तरीके से उन्होंने शुरू में आके अपने आप को सेटल किया इंडिया में, ये उसके हवाले से।
और wars and conquests वगैरह तो नहीं आ रहे नहीं ना? नहीं, वॉर्स नहीं आ रही बेटा, कल के टेस्ट में बहुत छोटा सा सिलेबस है, जस्ट आई जस्ट